آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ کب رکھیں۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ عمر کتنی ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی چھوٹے بچے 12 سال 15 سال کی عمر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے سوالیہ نشان ہوتا ہے کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا ہمیں رکھنا چاہیے۔ آج اکارڈنگ ٹو بائبل خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ہمیں روزہ کب رکھنا چاہیے۔ تو آئیے خدا کے زندہ اور معتبر پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ نکالے میں ساتھ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ، اس کا نامہ باب، اس کی 14 اور 15 آیتیں مبارکہ خدا کے کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت ہم کریں گے۔ مل گیا تو کہیں آمین۔ 9 باب، اس کی 14 اور 15 آیت۔ تو کلام حق کے اندر یہ مرقوم ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ یہ بڑی خوبصورت بات، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر، کس کے پاس آ کر؟ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا کہ فقیہ فریسی اور ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں پر تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے کیا ان کو ماتم یا فاقہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ جو روزہ پرانے عہد نامہ کے اندر ایماندار رکھتے تھے وہ با مقصد روزہ ہوتا تھا، اور جو یہودی رکھتے تھے وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، اس میں ایک روزہ شکر گزاری کا تھا، ایک روزہ کفارے کا تھا، یعنی اپنے گناہ کے کفارہ کے لیے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے وہ طویل روزہ رکھتے تھے۔ جس طرح کا جس کا گناہ ہوتا تھا اس طرح سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہاں آ کر اس بات کو وائنڈ اپ کر دیا کہ جب تک دلہا یعنی کلیسیا کا دلہا یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے ان کے، تب تک ان کو روزہ رکھنے کی ایک وقت آئے گا کہ جب دلہا ان سے جدا ہوگا تب یہ روزہ رکھیں گے۔ اور بائبل مقدس میں جب تک یسوع مسیح اس روح زمین پر رہے، یسوع مسیح کے شاگردوں نے روزہ نہیں رکھا، یسوع مسیح کی اس بات کو فالو کرتے ہوئے کہ دلہا ہمارے اور ہم اس کے اور کلیسیا اس کی، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے کی، فاتح کرنے کی، ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی اب یہاں یہ روزہ سٹاپ کر دیا ہے یسوع مسیح نے۔ اب دلہا جدا ہوا ہے تو اس کے بعد شاگردوں نے روزہ رکھا ہے۔ اب سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یوحنا کتنے ہیں؟ یوحنا کتنے ہیں؟ ایک یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، ایک یوحنا انجیل نویس ہے جس نے انجیل مقدس کو تحریر کیا، اور ایک یوحنا اور بھی ہے جس کا یہ بائبل ذکر کر رہی ہے کہ اس کے شاگردوں نے، تو یہ تیسرا یوحنا ہے۔ فالو کریں میری بات کو، کتنے یوحنا ہے بائبل کی روح سے؟ یوحنا انجیل نویس، بپتسمہ دینے والا، اور جس نے مکاشفہ لکھا ہے، یہ اس یوحنا کی بات ہو رہی ہے
جس کے شاگردوں نے یسوع مسیح سے آ کے کہا کہ فریسی اور ہم تو اکثر روزہ رکھتے ہیں، یعنی بپتسمہ دینے والا یوحنا یسوع مسیح یا اس کے شاگرد یسوع مسیح سے سوال نہیں کر سکتے۔ بپتسمہ دینے والا یوحنا تو پہلے اقرار کر چکا ہے کہ میں تو تیری جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق، تو میں تجھے بپتسمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا راست بازی کو پورا ہونے دے، ایسا کرنا ضرور ہے۔ فالو کریں میری بات کو۔ تو یہ تیسرا یوحنا ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور مکاشفہ جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے وہ بھی اسی یوحنا کی معرفت لکھا گیا۔ ہلیلویا۔ تو اس ٹاپک کو میں بعد میں تیسرے یوحنا کا پھر ٹاپک رکھیں گے کسی دن۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ روزہ کب رکھے۔ کلیئر کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ نہ تو بپتسمہ دینے والا یوحنا کہہ رہا ہے اور نہ ہی یہ انجیل نویس کہہ رہا ہے، بلکہ یہ تیسرا یوحنا جو ہے جس کو پھر کبھی ٹاپک کے ساتھ سٹڈی کریں گے، تعلیم دیں گے آپ کو کہ وہ یوحنا کون تھا اور کون ہے۔ ہلیلویا۔ تو یہاں تک یہ روزہ یوحنا کے شاگرد رکھتے تھے اور فریسی رکھتے تھے، اور یسوع مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب سوالیہ نشان ہے کہ روزہ کب رکھیں۔ اب اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے روزہ کب رکھا اور ہمیں کب رکھنا چاہیے۔ اس بات کو کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب نکالے میرے ساتھ۔ رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ قرآن کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ مل گیا تو کہیں آمین۔ 13 باب اس کی دوسری اور تیسری آیت مل گیا تو کہیں آمین۔ اور لکھا ہے جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور شاؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ آمین۔ اب یہ یسوع مسیح کے شاگرد دعا کر رہے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ کب رکھتے تھے؟ یسوع مسیح کے شاگرد روزہ کب رکھتے تھے؟ جب یسوع مسیح اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، یعنی جسمانی طور سے وہ شاگردوں سے جدا کیے گئے، تب وہ روزہ رکھتے اور دعا کرتے تھے روزے کے ساتھ۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے، کس کے لیے بھائی؟ میرے لیے برناباس کو اور شاؤل کو کیا کرو؟ مخصوص کرو جس کے واسطے میں نے ان کو۔ اب یسوع مسیح کے شاگردوں نے روزہ کب رکھا؟ جب روح القدس نے ان کی رہنمائی کی، جب روح القدس نے ان کی ہدایت کی، تب انہوں نے روزہ رکھا۔ ہلیلویا۔ اب سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے روزہ رکھا اور روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی ہدایت سے۔ اب ہمیں روزہ کب رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور پھر اپنے گناہوں سے اقرار کر کے معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا چاہیے، اور بپتسمہ کے بعد روح القدس کو حاصل کرنا چاہیے، اور پھر جب روح القدس آپ کو مل جائے تو روح القدس کی ہدایت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں جی، روزہ کب رکھیں؟ روح القدس کب ملے گا؟
तौबा करो, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में। अच्छा, जिसने अभी तक तौबा ही नहीं की, बपतिस्मा ही नहीं लिया, उसे रूह कुदस मिल गया? तो जिससे रूह कुदस नहीं मिला, क्या रूह कुदस उसकी हदायत करेगा? क्या रूह कुदस उसकी रहनुमाई करेगा? तो जब तक रूह कुदस आपकी हदायत और रहनुमाई ना करे, तब तक रोजा नहीं रखना चाहिए। सवालिया निशान है कि क्या बच्चे रोजा रख सकते हैं? हाँ, 12, 14, 15 साल के बच्चे तौबा करके बपतिस्मा लेकर रूह कुदस को हासिल करके रोजा रख सकते हैं। और रूह कुदस के बगैर रोजा, कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के शागिर्दों ने रोजा कब रखा? तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह के शागिर्द बने। रूह कुदस कब नज़ूल हुआ उनके ऊपर? जब 120 लोगों की जमायत बाला खाना के अंदर थी, तब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। वो रूह कुदस से भर गए। अब वो रूह कुदस से भरे हुए रूह कुदस की हदायत और रहनुमाई से वो दुआ और रोजे में वक्त गुजारते और दुआ और रोजे में ठहर कर वो लोगों के लिए शिफायत करते, बरकत चाहते, मखसूसियत करते। और हम बगैर तौबा के, बगैर माफी के, बगैर बपतिस्मा के, बगैर रूह कुदस की हदायत से रोजा रखेंगे तो वो रोजा बाइबल की रूह से काबिल कबूल, वो दिखावे का रोजा है जो मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा हुआ है। हाँ? जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास, हाँ? अपना चेहरा ना बिगाड़ो, दिखावे का रोजा। तो ये रोजा बेसिकली जो बगैर तौबा और बपतिस्मे रूह कुदस की हिदायत और रहनुमाई के बगैर होता है, वो फकीयों और फरीसियों वाला रोजा होता है। तो हमें कब रखना चाहिए? बपतिस्मा लेने के बाद, शागिर्द बनने के, रूहुल कुद्स को हासिल करने के बाद रोजा रखना चाहिए। इस बात को देखते हैं खुदावंद के कलाम में से। निकाले मेरे साथ इमाल 14 बाब की 23वीं आयत देखिए जरा। रसूलों के इमाल 14 बाब की 23वीं आयत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मिल गया तो कहें आमीन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जब वो ईमान लाए थे। आमीन। हाँ जी, कब रखा रोजा? पहली बात, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए क्या मुकर्रर किए? यीशु मसीह के शागिर्दों ने बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजा और दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया। और जो क्या लाए थे? ईमान लाए थे। हाँ जी, तो रोजा कब रखा जाए? ईमान लाने के बाद। तो ईमान कब लाते हैं? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। अब जो ईमान ही नहीं लाया, क्या वो निजात पा गया? तो जिसके गुनाह अभी तक माफ नहीं हुए, जिसके गुनाहों की अभी तक माफी नहीं हुई, क्या वो रोजा रख सकता है? तो लाजिम है कि हम ईमान लाने के बाद रोजा रखिए। हालेलुया। कब रखें? मसीह यीशु पर ईमान लाने के बाद रोजा रखें। यानी बात फिर वही है, बपतिस्मा लेने, तौबा करने, गुनाहों का इकरार, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा, रूह कुदस को हासिल करने के बाद और मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद। तो ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। बगैर ईमान के ईमान क्या है? और बगैर ईमान के रूह भी मुर्दा है। तो मुर्दा रूहें रोजा रख सकती हैं, जिंदा रूहें रोजा रखे जो रूहानी तौर पर जिंदा है, रूह कुदस से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब निकाले मेरे साथ कि रोजा कब रखें। मुकद्दस मत्ती की इंजील 6 बाब। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसकी पहली आयत देखेंगे। और 18वीं आयत देखेंगे। मिल गया तो कहें आमीन। खबरदार,
अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। क्या लिखा है जी? खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। रोजा कब रखें? क्या जवाब मिलता है? रोजा कब रखें? खुदा के बेटे और बेटियां बनने के बाद रोजा रखें। हालेलुया। और बेटे बेटियां कब बनेंगे? जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उतनों को उसने अपने फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। हालेलुया। फकीर फरीसी रोजा रखते हैं तो उनको अजर नहीं मिलता। 18वीं आयत पे देखिएगा जरा, इसी की 18 आयत पे देखेंगे, लिखा ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। हालेलुया। कौन बदला देगा? कि जिहदा बाप ही ना होवे उन्हें कुछ मिलेगा। जिसका बाप ना हो तो हमारा बाप कौन है? खुदा। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह ने हमें ये हक बख्शा है, उसी के वसीला से हम खुदा बाप को आए बाप कहकर पुकारते हैं। यीशु मसीह फिदिया ना देते, यीशु मसीह आपकर मेरे इफ्जी ना बनते, यीशु मसीह आपकर मेरा कफारा ना देते, हम यीशु मसीह पर ईमान ना लाते, हम बाप के फर्जंद नहीं कहलाते। यीशु मसीह के सबब से हमें ये बरकत, ये शफकत है कि हम आसमानी बाप को अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। आसमानी बाप को अब्बा यानी आए बाप कहकर। अक्सर मैं डिस्कस करते हुए पास्टर साहब से कहता हूं कि मैं जो कहना मेरा अब्बा हो, मैं अपने अब्बे को मांगना ते अब्बा मनू। कदों अब्बे नू अब्बा कहा जाता है? भाई जो हमारा हकीकी बाप हो उसी को बाप कहते हैं। पड़ोसियों के बच्चों के बाप को बाप तो नहीं ना कहते। अपने अब्बे नू अब्बा कहा जाता ना। तो अब्बा कदों बनेगा? जब मसीह यीशु को, उसकी तालीमात को, उसके हुक्मों को अमल में लाएंगे, अमल से ईमान होंगे, ईमानों से ईमान होगा। मसीह यीशु पर जब आपका ईमान होगा, उसकी तालीमात को कबूल करेंगे, उसके सबब से तौबा करके दिनों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे, आप और मैं उसके बेटे और बेटियां ठहरेंगे। और फिर आसमानी बाप जो आपके रोजे और दुआ को पोशीदगी में देख रहा है वही आपको अजर और बदला दे सकता है। हालेलुया। जब तक आप फर्जंद नहीं बनते, मैं अक्सर शायर बानी पे भी कहता हूं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो शागिर्द नहीं है, और जो शागिर्द नहीं है वो फसा में शामिल मिराज से शामिल हो सकते थे। आसमानी की बादशाही जो हमारे लिए बनाए आलम से मिराज है, क्या हम उसमें शामिल हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं हो सकते। इसी बात को आगे देखते हैं, निकाले मेरे साथ खुदा उनके कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 3 बाब की 13वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका देखेंगे। हालेलुया। मत्ती की अंजील 3 बाब 13 का 17 आयत। हालेलुया। मिल गया तो कहें आमीन। उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास इससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इस बार उसने होने
दिया। यीशु बपतिस्मा लेकर सिर्फ और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। इसका मतलब कि बपतिस्मा लेने तो पहले यीशु मसीह ने भी रोजा नहीं रखा। जब वो दरियाए यरदन से यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, उसके लिए आसमान खुला, कबूतर की मानद रूहुल कुद्स आकर उस पर ठहरा और फिर आसमान से आवाज आई कि देखो ये मेरा प्यारा जिससे मैं बहुत खुश हूं। चौथे बाब की पहली आयत से देखिएगा। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात का फाका करके आखिर को उसको भूख लगी। हाँ जी, यीशु मसीह ने रोजा रखे 33 साल की उम्र पहले 30 साल की उम्र में लिखा है कि तकरीबन जीसस 30 वर्ष के थे जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लिया उन्होंने। और उसके बाद 3.5 साल यीशु मसीह ने मुनादी की, यानी बपतिस्मा लेने से पहले यीशु मसीह ने रोजा फाका कब किया? बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, रूहुल कुद्स उस पर ठहर गया और जब रूहुल कुद्स ठहर गया तो यहां मत्ती की इंजील 4 बाब की पहली आयत में लिखा है कि फिर रूह से बियाबान में यानी जंगल में ले गया। कौन? पहले क्यों नहीं लेकर गया? पहले क्यों नहीं इस तरह का वाक्य हुआ? पहले उसने बपतिस्मा लिया, फिर रूहुल कुद्स उस पर ठहर गया, फिर रूह से बियाबान में, और फिर वहां जाकर उसने 40 दिन का फाका किया। तो यीशु मसीह को रोजा किसने रखवाया? रूहुल कुद्स ने यीशु मसीह को भी हदायत की कि तू बियाबान में चला जा, 40 दिन और 40 रात का फाका कर ताकि तू इब्लीस के हाथों आजमाया जाए। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह ने कब रोजा रखा? और रूहुल कुद्स ठहर जाने के बाद। तो हमें कब रखना चाहिए? और रूहुल कुद्स के बाद। मुत्फिक है? कब रखना चाहिए भाई? तौबा, गुनाहों की माफी, रूहुल कुद्स यानी बपतिस्मा लेने के बाद, रूहुल कुद्स को पाने के बाद, रूहुल कुद्स की हदायत से हमें रोजा रखना चाहिए। हालेलुया। आखिरी हवाला हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, निकाले मेरे साथ। यीशु मसीह ने रोजा या फाका किया रास्तबाजी को पूरा करने और बपतिस्मा लेने और रूहुल कुद्स को पाने के बाद यीशु मसीह ने रोजा रखा है। और हमें भी इसी कंडीशन में रोजा रखना चाहिए क्योंकि आप मसीह यीशु के फॉलोवर हैं, मसीह यीशु के शागिर्द हैं, मसीह यीशु के सबब से आप खुदा बाप के फर्जंद हैं, बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आखिरी वाला हम देखेंगे खुदा के कलाम में से रोमियो 8वां बाब निकाले मेरे साथ। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 14 आयत निकालेंगे। आमीन। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के। तो रूह कब मिलेगा? तौबा करने के, गुनाहों की माफी के, बपतिस्मा लेने के, रूहुल कुद्स पाने के। फिर रूहुल कुद्स आपकी रहनुमाई करेगा और जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां। और फिर वो पोशीदगी में रोजा रखेंगी तो फिर खुदा पोशीदगी से उनको उनका अजर और बदला देगा, वरना नहीं देगा। बात की समझ आ गई? रोजा कब रखें?
यीशु मसीह के शागिर्दों में भी रूह कुदस पाने के बाद रखा जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमा गए, और इसी तरह यीशु मसीह ने बजाते खुद भी बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुदस से भर जाने के बाद रूह की हिदायत से बियाबान में गए और 40 दिन और 40 रात का फाका किया। और जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे, और उनका बाप उनको कशीदगी से जो देखता है उनकी दुआ और रोजे के सबब से उनको अजर और बदला देगा। खुदा आपको और मुझे भी ऐसा करने की तौफीक बख्शे। कलाम हक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।